Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter The End of Bipolarity in Contemporary World Politics, and under this chapter we are discussing right now the unipolar world. And under this unipolar world we have discussed about the first Gulf War, how after the end of the USSR there was two possibilities. Either the world could have moved in the direction of unipolar world, or the world could have moved in the direction of multipolar world. And as we have experienced that the world has moved in the direction of unipolar world, and we see that this hegemony of US has been established after this end of USSR. And in this regard, one important thing is there that it's not the hegemony of US was established only after the end of USSR, because what we find that if we consider it from the view of the cultural hegemony, that is called soft power, from that view there was dominance of US starting from the 1945 के बाद से ही अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट में देखें तो यूएस की हेजेमनी उस समय से इस्टेब्लिश थी. हालांकि मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टर्म्स में बोथ द पावर्स वर इक्वल, बट अगर कल्चरल पावर को हम देखें, अगर सॉफ्ट पावर को हम देखें तो व्हाट वी फाइंड दैट द यूएस वाज मोर पावरफुल. और डोमिनेंस जो यूएस कल्चर का जो डोमिनेंस पूरी दुनिया पे नज़र आता है वो हमें उस समय 1945 से ही नज़र आ रहा था. बट अदर थिंग्स में वो बराबर थे और इसलिए कोल्ड वॉर जो था वो चल रहा था. एंड व्हाट हैपेंड कि 1991 में यूएसएसआर एंड हो जाता है. एंड ये नहीं कि जस्ट यूएसएसआर एंड हुआ और हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड स्टार्ट हो गया. इट टुक so many years to establish this dominance of USA or hegemony of USA. And first time when the world felt this dominance was the first Gulf War, when Iraq invaded Kuwait in the year 1990 in August. The first Gulf War was between Iraq on the one hand and 34 countries on the other hand, and these 34 countries were led by US. And we have discussed about this war in detail in the previous class, and now we will switch to another important topic which is according to your revised syllabus, and that is Afghanistan. Afghanistan is an important country from the viewpoint of Cold War. When this Cold War era was there, what we find that during the Cold War era there was war, there was tension between the two superpowers regarding because they wanted to increase the number of countries of their influence. जो countries उनके influence में हैं उनके number को वो increase करना चाहते थे, both the superpowers, and this led to the tension and conflict between these two superpowers. And in this regard we have seen various arenas of Cold War in the previous chapter कि किस तरह से जो world की different parts थे उनके उनमें ये जो सुपर पावर्स थे वो आपस में उस कंट्री को अपने कंट्रोल में लेने के लिए किस तरह से वो छोटे छोटे जिसको हम कहेंगे शूटिंग वॉर्स होते रहते थे पूरे वर्ल्ड में. तो ऐसा ही एक एरिया था हमारा, एक कंट्री था अफगानिस्तान, जो अभी भी है हमारे साथ. अफगानिस्तान इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और जो अफगानिस्तान की लोकेशन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम एशिया में देखें तो अफगानिस्तान के इधर वेस्ट एशिया है, अफगानिस्तान के इधर साउथ एशिया है, और अफगानिस्तान के ऊपर में सेंट्रल एशिया है. तो ये तीनों सेंट्रल, साउथ
एंड वेस्ट एशिया के कन्फ्लुएंस में पड़ता है, तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। बहुत एंशियंट टाइम से अफगानिस्तान होल्ड्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पोजीशन बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। एंड नाउ वी कम टू द कोल्ड वॉर एरा। इस कोल्ड वॉर एरा में क्या हुआ कि इन अफगानिस्तान देयर वाज in 1979 we have discussed about this when we were discussing the arenas of Cold War. Then we were discussing the disintegration of USSR. This Afghanistan was one of the most important reason for the disintegration of the USSR, because Afghanistan में 1979 में USSR में military intervention किया था. So now we are going to discuss it some detail, because now it's your topic. A new topic is there in your revised syllabus, that is Middle East crisis regarding Afghanistan. तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वहाँ पर जो भी जो रेजीम था उसके अगेंस्ट एक कूप होता है, एक तख्ता पलट होती है, और जो लेफ्ट गवर्नमेंट होती है उनकी एक सरकार जो है वो बन जाती है। सो कूप के बाद जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बनती है अफगानिस्तान में, उस लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? सो यू जस्ट हैव टू थिंक लॉजिकली, किसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है? गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है। जो पार्टी, जिस पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पे बन रही है, उस पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। Now what we see that this People's Democratic Party of Afghanistan is a leftist party, and this leftist party is getting support from USSR. इसने कूप किया, कूप करके जो रेजीम थी उसको हटा करके ये पावर में आ जाती है ये पार्टी। तो इसको कूप करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए था, वो फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, दैट सपोर्ट इट वाज गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम USSR। ठीक है, तो इस कूप के बाद ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है अफगानिस्तान में, और ये जो गवर्नमेंट है ये लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है, इसको USSR से सपोर्ट मिला हुआ है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू पावर इट स्टार्टेड सम रिफॉर्म्स, बिकॉज जो कम्युनिज्म होता है, जैसे कि हम लोगों ने USSR में भी देखा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी आर नोइंग ऑल दीज थिंग्स की जो कम्युनिज्म होती है दैट इज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वल सोसाइटी। तो इक्वल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए अफगानिस्तान में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, जिनमें से लैंड रिफॉर्म्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि जो जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनसे लैंड लेके जो लैंडलेस है उनको देना, या फिर लैंड को पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में लेकर के फिर उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स के को अपनाया गया अफगानिस्तान में इस नई गवर्नमेंट की तरफ से, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, इसको नापसंद किया गया। एक पार्टिकुलर ग्रुप था जो अफगानिस्तान में इसको नापसंद कर रहा था, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग था उसके पहले जो सिस्टम था उससे वो बेनिफिट में थे। तो जब इन्होंने रिफॉर्म्स लाया तो वो उनको नापसंद हुआ, और ये जो ग्रुप था ये ग्रुप मुजाहिदीन के नाम से जाना जाने लगा। मुजाहिदीन इज वी कैन से इट्स अ ग्रुप हु ऑलवेज अपोज नॉन मुस्लिम पार्टी, नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट, एंड वो चाहते हैं कि शरीयत जो है, उनके शरिया जो है उनके हिसाब से रूल होना चाहिए। तो मुजाहिदीन जो थे वो इस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट वो खड़े हो गए। ओके, एंड नाउ व्हाट वी फाइंड दैट दीज मुजाहिदीन्स गेव अ कॉल ऑफ जिहाद। ये इन्होंने जिहाद हो गया कि मतलब हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट है पीपल्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, दैट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ शरिया। तो वी आर फाइटिंग फॉर जिहाद, हम जिहाद कर रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं।
and this Mujahideen, they were supported by US plus Pakistan. Pakistan also played a very important role in the matters of Afghanistan, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का नेबर है ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, और एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का नेबर है, और दूसरी जो पाकिस्तान है दैट इज़ अ सैटेलाइट कंट्री ऑफ यूएस, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था, देखो एक्चुअली अफगानिस्तान के अंदर जो लड़ाई हो रही थी वो लग रहा था कि ये लड़ाई है इस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान और मुजाहिदीन के बीच की, बट एक्चुअली इट वाज अ वॉर, इट वाज type of war we can say between USSR and USA, because this party, this leftist party जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई थी, that party was getting support from USSR, और जो इस पार्टी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो चुका था कि ये गवर्नमेंट को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, these मुजाहिदीन्स, these were getting support from US. तो ये जो लड़ाई थी ये दिख रहा था कि ये इनके बीच की लड़ाई है, बट एक्चुअली दिस वॉर वॉज बिटवीन USA एंड USSR. ओके, so we are talking about this period from 1979 to 1989 के दौरान में ये चीज़ें हो रही हैं. We have just started, अभी 1979 के बाद का पीरियड जस्ट स्टार्ट हुआ है, और इसमें जो मुजाहिदीन्स हैं उनको यूएस से सपोर्ट मिल रहा है. कैसा सपोर्ट मिल रहा है? यूएस उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, यूएस उनको वेपन्स अवेलेबल करा रहा है, एंड पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग होती थी. ये जो मुजाहिदीन्स थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती थी. तो ये एक इस तरह से जो चल रहा था, चीज़ें जो थी वो इस तरह से काम करना शुरू किया अफ़गानिस्तान में. व्हाट वी फाइंड कि जो अफ़गानिस्तान का जो टेरेन है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि कुछ पार्ट में डेजर्ट है, कुछ पार्ट में क्या है कि हिंदुकुश जो माउंटेन रेंज है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया में है. और ये जिन मुजाहिदीन्स की हम बात कर रहे हैं, दीज मुजाहिदीन्स वर वेरी एफिशिएंट इन गुरिल्ला वॉरफेयर. छुप के जो वार करने वाला, छुप के जो लड़ाई करने वाली जो तरीका होता है उसमें वो बहुत एक्सपर्ट थे. एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ द टेरेन ऑल्सो, कि हिंदुकुश जो था उसमें जिस तरह के टेरेन्स थे उसका भी उनको एडवांटेज मिलता था. तो वो उन पहाड़ों में छुप के रहते थे, और जो सोवियत आर्मी, वहाँ पर सोवियत आर्मी का भी इंटरवेंशन हो चुका था इस समय तक, क्योंकि सोवियत किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान पे जो उनका होल्ड हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उसको वो ख़त्म नहीं होने देना चाहते थे. तो जब मुजाहिदीन उनके अगेंस्ट स्टैंड हो गए कि इस पार्टी की जो गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान की जो करेंट गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट जब ये मुजाहिदीन स्टैंड हो जाते हैं और जब उनको यूएस सपोर्ट करने लगता है, तो इधर से क्या होता है कि ये मिलिट्री इंटरवेंशन होता है. पूरी जो सोवियत आर्मी थी वो वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो जाती है अपने पूरे वेपन्स और आर्मी के साथ. तो ये क्या है? दिस वॉज मिलिट्री इंटरवेंशन. लेकिन इस मिलिट्री इंटरवेंशन में क्या होता है कि मुजाहिदीन्स बेनिफिशियल पोजीशन में थे, क्योंकि एक तो उन्हें टेरेन का पूरा नॉलेज था अफगानिस्तान के, वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट थे. तो सोवियत जो था वो काफ़ी उसको लॉस हो रहा था. आई टोल्ड यू दिस, ये जो अफगानिस्तान पे जो सोवियत यूनियन का जो इंटरवेंशन होता है, दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द फाइनेंशियल बर्डन ऑन यूएसएसआर. ये यूएसएसआर के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन प्रूफ हुआ, और जिसको कि वो झेल नहीं पाया, जिसके कारण जो स्टैग्नेशन उसकी इकोनॉमी में आई वो बढ़ती गई थी. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये यूएसएसआर जो है वो अपनी पूरी मिलिट्री के साथ इंटरवीन करता है, बट मुजाहिदीन के साथ जो उसकी लड़ाई है उसमें यूएसएसआर हारता जाता है, और वो फिर और मिलिट्री लाता है. इस तरह से उसकी कंडीशन और भी ख़राब होती जाती है. यही समय है जबकि गोरबाचेव जो है वो पावर में आ चुके हैं यूएसएसआर में, एंड गोरबाचेव हैव स्टार्टेड सो मेनी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ला रहे हैं, एंड नाउ ही वांटेड दैट
USSR should move on the path of development, and what we see that in the year 1989 the Soviet troops was withdrawn completely from Afghanistan. तो जो अफगानिस्तान पे जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ था USSR का इन द ईयर 1979, वो जाकर के 1989 में पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं USSR के. बट व्हाट वी फाइंड कि ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर. जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसके अंदर बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस. एक तरफ से सोवियत इंटरवेंशन, एक तरफ से सोवियत मिलिट्री का वहाँ पर आना, दूसरी तरफ से जो मुजाहिदीन थे उनको US का सपोर्ट मिलना. तो ये जो चीज़ें हो रही थी उसने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी नई चीज़ों को डेवलप किया. एंड ये जो नए डेवलपमेंट्स होते हैं अफगानिस्तान में, ऑल दीज डेवलपमेंट्स लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ द सिविल वॉर इन दैट कंट्री. सो सिविल वॉर स्टार्टेड इन अफगानिस्तान इन द ईयर 1989. जिस साल में USSR वहाँ से विड्रॉ करती है अपनी आर्मी को, उसी समय से वहाँ पे सिविल वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है फ्रॉम 1989 टू 1996. दिस इज द पीरियड ऑफ सिविल वॉर. एंड दिस civil war we can say Mujahideens were against the USSR supported government, the leftist government which was there, उसके अगेंस्ट थे. उसके बाद गवर्नमेंट चेंज भी होती है वहाँ पे ड्यूरिंग दिस 79 to 89 के पीरियड में. ये मुजाहिदीन्स जो थे वो उनमें भी आपस में वो कई ब्रांचिंग हो गई. वी कैन से इट कि उनमें कई पार्ट्स हो गए कि अलग अलग टुकड़ों में वो बट गए. और इसी मुजाहिदीन्स के अगेंस्ट एक ग्रुप हो गया. कई सारे आपस में कई सारे वहाँ पे ग्रुप्स आ गए जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को क्लेम कर रहे थे कि हम मतलब वी आर द रियल मुजाहिदीन्स, वी आर फॉर जिहाद, हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं. तो ये इस तरह का क्लेम जो है वो कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा था जो कि सभी मुजाहिदीन्स के कारण ही आए एग्जिस्टेंस में. और इसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिलिट्री आउटफिट जो है वो इमर्ज करता है, पैदा होता है, दैट इज तालिबान. अब ये तालिबान जो है दैट इज ऑल्सो क्लेमिंग कि दे आर फाइटिंग फॉर जिहाद. मुजाहिदीन्स के अगेंस्ट तालिबान हैं. एक और ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर और भी है जो कि काम कर रहा है, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अल कायदा. So we see all these terrorist groups were there. All were claiming to be real मुजाहिदीन. उनके बीच सिविल वॉर चल रहा था. ये पीरियड 1996 तक चलता है. एंड इसी समय क्या होता है कि आफ्टर जैसे ये पीरियड खत्म हो रहा है, what we find, we have discussed this in the previous class कि किस तरह से 1998 में केन्या और तंजानिया जो दो कंट्रीज हैं, वहाँ की जो US एम्बेसी थी उन पे बॉम्बार्डिंग होती है. और इस बॉम्बार्डिंग के लिए जो कि 1998 में हुई तंजानिया और केन्या में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल who was responsible? Al Qaeda. And who was the head of this Al Qaeda? The head of Al Qaeda was Osama bin Laden. ओके तो ये 1998 में अटैक जो हुआ, बॉम्बार्डिंग हुई, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो अफगानिस्तान पे जो USSR का इंटरवेंशन होता है, इंटरवेंशन ख़त्म हो जाता है. 89 में USSR अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लेती है. उसके बाद वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है. एंड ऑल इन बिटवीन ऑल दीज पीरियड्स व्हाट वी फाइंड कि अमेरिका वॉज देयर, US फोर्सेस वाज आल्सो देयर. तो इसमें क्या हो रहा है कि अब जो अफगानिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तालिबान है, इनका ये डिमांड हो रहा था कि US फोर्स यहाँ से हट जानी चाहिए. ठीक है. और इस कारण से जो कंट्रोवर्सीज हैं वो बढ़ती गई. US के साथ जो रिलेशंस थे तालिबान के, अल कायदा के, वो खराब होने शुरू हो गए. एंड व्हाट वी फाइंड कि इसी का ये नतीजा था
कि 1998 में जो एम्बेसी पे अटैक होता है वो उसी का नतीजा था। और उसके बाद यूएस ने क्या किया, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच उसने स्टार्ट की। और ये ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का पर्पस यही था कि अल कायदा के जो टारगेट्स हैं उनको उन्होंने खोजा, एंड दे फाउंड द टारगेट्स इन अफगानिस्तान, इन सूडान, और वहाँ पर बम्बार्डिंग की यूएस फोर्सेस ने, यूएस गवर्नमेंट ने उन कंट्रीज पे बम्बार्डिंग की क्योंकि वो अल कायदा के टारगेट्स थे। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हम इसको क्यों यूएस हेजेमनी के अंदर पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडिंग दीज इन यूएस हेजेमनी, क्योंकि ये प्रूव कर रहा है कि किस तरह से यूएस जो है वो अपने पावर को दिखा रहा था, अपने पावर को एजर्ट कर रहा था, उसकी डोमिनेंस जो है वो हमें अब समझ में आ रही थी। तो जिस तरह से चीज़ें डेवलप का, चीज़ों का जो इवेंट्स का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हमने 1998 में ये इवेंट देखा, और उसके बाद एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट होता है, एंड दैट इज अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दैट इज कॉल्ड 9/11. So what we see, what happened on 11th September 2001, 19 hijackers who were from a number of different Arab countries, they took control of 4 American commercial aircraft. And after that what they did, after taking off, when the flight जब take off हो जाता है उसके बाद they flew them into important buildings in US. And what happened that one airline each crashed into the north and south towers of World Trade Center in New York. So this incident is known as 9/11 क्योंकि ये 11 सितंबर को हुआ था। एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास व्हेन वी वर स्टार्टेड द चैप्टर इन द स्टार्टिंग, उसी में मैंने बताया था कि क्यों इसको 9/11 कहते हैं, बिकॉज ऑफ पहले मंथ लिखते हैं यूएस में एंड देन डेट, ठीक है। तो ये जो 9/11 इंसिडेंट था दैट कंसिडर टू बी द, मतलब ऐसा इंसिडेंट आज तक यूएस के हिस्ट्री में नहीं हुआ था। यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला एक ऐसा इवेंट था जिसमें कि इतने यूएस सिटीजन्स की कैजुअलिटी होती है। अराउंड 3000 पीपल वर किल्ड इन दिस अटैक, एंड दिस अटैक चेंज द scenario of the world in a very important manner. So after this 1998 में जो भी हुआ केन्या और तंजानिया में, उसके बाद जो यूएस को जो यूएस पे जो असर हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स नॉट कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे एक्चुअली इनको यूएस का सपोर्ट था। इन द स्टार्टिंग द यूएस सपोर्टेड द मुजाहिदीन, यूएस सपोर्टेड द तालिबान ऑल्सो। तो यूएस ने हर तरह से सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, वेपन्स का सपोर्ट दिया, उनकी ट्रेनिंग करवाई, एवरीथिंग वाज देयर। तो अब क्या हो रहा था, अब ये उनके ही अगेंस्ट हो गए, ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं ये यूएस के ही अगेंस्ट हो गए। और इसका पहला जो दिखता है हमें कि कैसे वो यूएस के अगेंस्ट हो गए, पहला ये इंसिडेंट था 98 का, और दूसरा इंसिडेंट जो है हमारा जिसको हम 9/11 कहते हैं, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हुई, इसके बाद अब यूएस जो था उसने अपनी जो लड़ाई थी वो टेररिज्म के अगेंस्ट उसने डिक्लेयर कर दिया। दैट वाज कॉल्ड ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। बट यहाँ पर जो हमें समझने की चीज़, अगर हम चीज़ों को समझना चाहते हैं तो ये ध्यान देने लायक बात है कि जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यूएस ने सपोर्ट किया, जब तक वो दूसरे कंट्रीज़ में उनके कारण लॉस ऑफ लाइफ हो रहा था तब तक यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूएस वॉज नॉट अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यूएस तो उनको सपोर्ट कर रहा था, आप उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हो, आप उनको मिलिट्री हेल्प दे रहे हो, वेपन्स दे रहे हो, फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हो, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड बाय द यूएस फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब ये उनकी ही अगेंस्ट पड़ गए तब इनको समझ में आया कि टेररिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब अपने पर पड़ती है तब समझ में आता है। वही बात यूएस के साथ हुई, और तब ये समझा कि टेररिज्म की जो मार होती है उसका क्या असर होता है। एंड देन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड दिस ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म।
एंड व्हाट वी सी कि इस समय तक यूएस में क्लिंटन जो थे वो उनका रोल खत्म हो गया था। क्लिंटन की गवर्नमेंट के 2 टर्म्स ओवर हो गए थे 1998 में। एंड देन व्हाट हैपेंड कि not in 1998, by 2000 year, Clinton was there as a president of US. And after this, after Clinton, now again who became the president? The president was Bush, who was junior Bush, जो कि पहले बुश थे, जो कि उस समय जबकि इराक पे इन्वेजन हुआ था फर्स्ट गल्फ वॉर के टाइम में बुश जो थे जॉर्ज H.W. बुश, और अब उनके बेटे थे जिनका नाम था जॉर्ज बुश। तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो ये चेंज ऑफ प्रेसिडेंटशिप होता है यूएस के अंदर ड्यूरिंग इसी समय में 2000 में। एंड व्हाट वी सी कि ये जो न्यू प्रेसिडेंट हमारे हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इनका काफ़ी हार्ड एटीट्यूड था। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लिंटन जो थे वो ग्लोबल मैटर्स में काफ़ी जो सॉफ्ट इश्यूज होते थे उन पर उनका कंसंट्रेशन होता था। बट जॉर्ज बुश ने उनका जो एटीट्यूड था दैट वाज डिफरेंट। ही होल्ड अ वेरी हार्डर व्यू ऑफ यूएस इंटरेस्ट, and that is why he declared this global war on terror after this 9/11. And under this global war on terror, the US started one operation, and that the name of that operation was Operation Enduring Freedom. Okay, so this operation was called Operation Enduring Freedom. And now this global war on terror, this Operation Enduring Freedom, all these activities of US government was against this terrorist organization of Al-Qaeda and Taliban regime. बिकॉज जो भी हुआ यूएस में उसके पीछे अलकायदा वॉज रिस्पॉन्सिबल। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है, अलकायदा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अटैक। तालिबान वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग अलकायदा। तो अब यूएस जो था वो अलकायदा और तालिबान के अगेंस्ट हो गया। एंड एट दैट टाइम, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट थी। और फिर यूएस जो है वो तालिबान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करता है यूएस अफगानिस्तान में। एंड इसी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के उसमें काम करते हुए जो नाटो की फोर्स होती है, जिसमें कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था यूएस की लीडरशिप में जो हो रहा था, वो जाकर के तालिबान की जो रेजिम थी अफगानिस्तान में उसको डिफीट करती है। हालांकि तालिबान की जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो जाती है अफगानिस्तान में, लेकिन ये अलकायदा और तालिबान जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो अभी भी आफ्टर being defeated by US in Afghanistan, still these organizations were powerful in various different countries of this Middle East. And what we find कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्होंने काफ़ी सारे टेरर अटैक्स किए कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ पे। और ये टेरर अटैक्स की यही रीजंस थे, क्योंकि ये जिस तरह से अफगानिस्तान में इनका आना हुआ यूएस फोर्स का, फिर उनको हटाया गया और उसके बाद काफ़ी सारे अटैक्स हुए। बट यूएस जो था वो अपने ऑपरेशन में कभी भी उसने कोई कमी नहीं की। एंड लास्टली व्हाट वी फाइंड, द यूएस फोर्सेस वर एबल to kill Osama bin Laden in an operation, and this was a very great achievement of US, क्योंकि Osama bin Laden को खोज पाना it was not an easy task, बट यूएस का जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, जो जितनी उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके कारण ही वो पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने उसको एग्जैक्टली पकड़ लिया कि वो कहाँ थे, और वो सारा कुछ सैटेलाइट से ऑपरेशन हुआ था।
एंड देन वो अबाटाबाद जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर एक घर में उनको ट्रेस किया गया एंड देन यूएस मिलिट्री जो है वो उसको पूरी तरह से उनको ख़त्म कर देती है और उसामा बिन लादेन का जो 11 मई 2011 में उनकी ओसामा बिन लादेन मर जाता है और इस तरह से ये जो अमेरिका का जो बदला था वो पूरा हो जाता है एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास.